हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा और आज है केवीएस का पीजीटी का सेशन और इसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ पोयम कीपिंग क्वाइट, जो कि बहुत ही प्यारी सी पोयम है पैब्लो नेरुडा की, जो कि एक चिली पोएट है और ये मतलब साउथ अमेरिकन पोएट है चिली के, और ये बहुत ही प्यारी पोयम है और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पैब्लो नेरुडा की पोयम, जो कि है कीपिंग क्वाइट। अरे भैया, इतनी बढ़िया पोयम है कि इस पोयम को पढ़ के तो मुझे लगा हाँ भाई, साइलेंस इफ स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्डन क्यों कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैब्लो नेरुडा द नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए 1971 में और जन्म हुआ था 12 जुलाई 1904 चिली में। मृत्यु हुई 73 में सेंटियागो चिली में। Residence at the time of the award Chile. Prize motivation for a poetry that with the action of an elemental force brings alive a continent's destiny and dreams. और language है इनकी Spanish. Pablo Neruda was born in Parral, Chile. His father opposed his interest in writing and literature. उनके फादर को उनका लिखना पढ़ना पसंद नहीं था, मगर नेरुडा was already working as a journalist and writer when he was 16. In 1921, he moved to Santiago to study French at the university there, but he soon began to devote himself to poetry full time. Though Neruda made a name for himself as a poet, he remained poor. मग बेचारे गरीब ही रहे. So he began working as a diplomat in Asia and Europe. He was also a senator for the Communist Party of Chile. In 1921, Pablo Neruda published the poetry collection titled Veinte Poem as the Amor, 20 love poems and a song of despair. This established him as a prominent poet and an interpreter of love and erotica. Official journeys as a diplomat in Asia affected Neruda strongly, which is reflected in 2 volumes of poem, Residencia, Residence on Earth, and जो नेरुडा की communist sympathies थी are clear in the work Canto General, an epic poem about the whole South American continent. अब मैं इस poem को पढ़ाऊंगी, आप लोग मेरे साथ ध्यान से समझते चलिएगा। कोशिश तो मैं पूरी करूंगी इसे समझाने की आप लोगों को। कीपिंग क्वाइट। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वील ऑल कीप स्टिल। सबसे पहले ये जो पोएम है ये फ्री वर्ड्स में है और इसमें पोएम में ही सेज कि हम सब में अब 12 तक गिनती करेंगे और सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ये जो 12 है, ये 12 जो है इट्स अ सिंबल ऑफ क्लॉक, ठीक, एंड डेली एक्टिविटी। इट्स ऑल्सो अ डेली एक्टिविटी कि ये भी काम हमें रोज करना चाहिए। एंड वी ऑल, मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और हम सब चुप हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि पहली बार धरती पर, फेस ऑफ द अर्थ, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कोई बात नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज लैंग्वेज इज इक्वल टू डिफरेंसेस। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, एक क्षण के लिए रुकें and not move arms so much, और अपने हाथों को इतना ना हिलाएं, यानी कि move our arms, action ना करें ज्यादा। साइलेंस सबका एक सा होता है, लैंग्वेज अलग होती है। ओनली साइलेंस कैन डिसिपेट द डिफरेंसेस। सो here he means to say, here he has shown he himself was a witness to Spanish war and he has seen how atrocious that war was. That is why here he says that if people can keep calm for a while, all the activities, all the unnecessary activities will come to a halt. And that is what required, because too much activity is leading towards destruction. So here he says that let's all count 12 and we'll keep mum for a while,
because when we speak languages, these languages create differences, and the silence, the language of silence is same for everyone. So please, for a sec, be one, be united. And he says that do not move your arms so much. Arms, movement of arms means symbol of action. Don't do too much action. Why? Because if you are involved in so many things and so many actions, obviously that will lead to destruction. That's what he is saying. Because in the background, he means to say that all these activities lead to war. People can keep themselves quiet, and that's one thing which is required, because if you say something, others say something, and this gives way to wars. So here he says, be quiet for a while. Now the next one is gestures. ये जो arms का movement है, ये aggression को दिखा रहा है, aggression को दिखा रहा है. तो please be quiet. Don't do too many actions, don't do too much actions, otherwise it will lead to aggressiveness. It would be an exotic moment, without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. It would be an exotic moment. वो moment कैसा होगा? That will be exotic, एक बिल्कुल foreign moment होगा. Without rush, जब हम भाग नहीं रहे होंगे, जब हमारे आसपास मशीनों की आवाज़ें नहीं होंगी, जब हम भाग नहीं रहोगे, हम साइलेंस की आवाज़ सुनेंगे, तो हम लोग वी वुड ऑल बी टुगेदर. तब हम एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक विचित्रता तो दिखेगी, मगर हम एक दूसरे से खुद को जुड़ा हुआ जो है वो महसूस करेंगे. अब मैं आपको बताऊं कि ये जिस कलेक्शन में छपी थी, जिस कलेक्शन में ये छपी थी, कलेक्शन ऑफ पोएम, कलेक्शन क्या है? It's Extravagaria. जिस में ये पोएम छपी थी, उस कलेक्शन का नाम है एक्स्ट्रावेगेरिया. और यहाँ पे ये मतलब इस पोएम मैंने इतना स्टैंजा नहीं, पूरी पोएम जो है एक्स्ट्रावेगेरिया में छपी थी. और इन्होंने इसमें ये कहा है कि if we keep mum for a while, if we keep quiet for a while, this is the way we escape from this mechanical world. हम सोचते हैं कि जो ये मूवमेंट है, ये जो मशीन्स का मूवमेंट है, ये जो धड़ धड़ पड़ पड़ की आवाज़ है, it's activity. No, it's not. It's a sort of pollution. We are polluting ourselves, we are polluting this world, and if we keep quiet for a while, we may be able to clean this world, to purgate this world. So here he means to say कि if we keep quiet for a while, we all will be together, because silence can bind us together. So it is better to keep quiet for a while. ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑफ पोएम आप लोग नोट कर लीजिएगा. कलेक्शन ऑफ पोएम है एक्स्ट्रावेगेरिया, एंड हियर ही सेज इट इज अ वे बाय विच वी एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मशीन. नाउ अब यहाँ से ये जो लाइन इन्होंने लिखी है, नेक्स्ट स्टेंजा है, fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would not look at his hurt hands. यहाँ ना ये जो दिखाया है, इसमें पोएट के बारे में ये दिखाया है कि पोएट जो है ना, ही इज वेरी मच कंसर्न टूवर्ड्स द अंडरडॉग्स एंड द पीपल, एंड ही इज वेरी मच कंसर्न टूवर्ड्स अंडरडॉग्स एंड एनिमल्स टू. यहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव जो है वो दिखाया है, जो है इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है. और इसमें उन्होंने ये बताया है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. इससे पता चल रहा है एक थीम जो इसमें दिखा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी हमें इसमें देखने को मिल रहा है. कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम कुछ समय के लिए कुछ भी ना करें, इफ वी डू नथिंग, कुछ भी ना करें, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो जो वो मछली पकड़ने वाला है ना, तो वो वेल्स को नहीं जो है, वो वेल्स को
हार्म नहीं करेगा। तो भाई ये तो इसका सिंबल क्या है कि फिशरमैन, फिशरमैन इज द सिंबल ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। एंड वेल्स मतलब होता है कि जो कमजोर तबके का एक्सप्लॉइटेशन। तो कहता है कि अगर कुछ समय के लिए शांत रहें तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग अंडरडॉग्स का, वो लोग मासेस का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे अगर वो अपनी एक्टिविटी को कुछ समय के लिए रोक दे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो जो बेचारा एक गरीब व्यक्ति है जो नमक बना रहा है, वो अपने हाथों को नहीं देखेगा कि उसके हाथों में कितने कट्स लग गए हैं। तो here he means to say कि if we stop our activity for a while, so most of the people will get benefit from it. People think that we are active, that is why we are prospering. But sometimes we should take a break and we should give a halt to everything, then the world will prosper. Because excess of everything is bad. So he means to say that if the industrialists stop for a while, exploitation will automatically get resolved. तो वो exploitation जो है वो रुक जाएगा। तो here he means to say that fishermen, और ये जो whales है ये सिंबल है अंडरडॉग्स का, समाज के निचले तबके का, और fisherman is the symbol of industrialists. And man gathering salt, again people who live on periphery, उसका जो है ये सिंबल है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको लेते हैं तो जी ये जो पूरा इन्होंने लिया कोल्ड सी एंड ये पूरा एक्सप्लॉयटेटिव जो है ये इन्होंने यहाँ पर ये लिया है, ये कोल्ड सी एंड वेल्स जो है एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, दैट इज एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। नाउ दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स का यहां मतलब है केमिकल वेपन्स। अब मैं इसको हटा के यहां दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, केमिकल वेपन्स की बात की जा रही है, केमिकल वेपन्स। अब यहां पर वो कह रहे हैं वॉर्स का जो मतलब है यहां पर ये कह रहा है कि केमिकल, भाई जो लोग युद्ध की तैयारी करते हैं, वॉर्स विद गैस, गैस से लड़ते हैं, फायर वेपन्स से लड़ते हैं, विक्ट्रीज इतना जीतते हैं कि कोई सर्वाइवर ही नहीं बचता, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अगर वो भी कुछ समय के लिए शांति रख लें तो वो भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वो भी अपने साथियों के साथ चल पाएंगे इन द शेड डूइंग नथिंग, शांति में कुछ नहीं करेंगे। Here he means to say कि जो युद्ध होते हैं ना ये इंटेंशनली किए जाते हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, ये युद्ध जो किए जाते हैं ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। और इन्होंने इस पे एक व्यंग किया है कि ये जो युद्ध होते हैं ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, और ये इसमें उन्होंने स्पेनिश वॉर के बारे में बताया है। एंड हियर ही सेज कि पीपल हु want to show their power over other countries, they prepare themselves for war. If they put aside all these things, they will also be able to feel the feelings of others. So he means to say that all these wars and other things are structured and people participate in them because they are being instigated. So he means to say stop doing wars, feel the pain of others, and when you can feel the pain of others, when you keep silent for a time being, अगर कुछ समय के लिए आप साइलेंट रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ग्रीन वेव जो है वॉर को कहा है, और ये मैंने आपको बताया भी था कि नेरूडा जो है ही वॉज अ विटनेस टू स्पेनिश वॉर, वो उन्होंने स्पेनिश वॉर को जो है ही वॉज अ विटनेस टू स्पेनिश वॉर, और उन्होंने एट्रोसिटीज देखी थी स्पेनिश वॉर के दौरान। जनरल फ्रैंक के जो है उसमें नेतृत्व में। तो ही मीन्स टू से दैट स्टॉप डूइंग दीज एक्टिविटीज एंड दीज वॉर्स विल इवेंचुअली स्टॉप्ड। तो ये वॉर्स विल बी स्टॉप्ड हाउ, अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, अगर सामने वाला लड़ाई ना करे तो जो है जो सामने और जो पार्टी है वो लड़ेगी ही नहीं।
तो वो कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए इन युद्ध को विराम देना चाहिए. तो those who prepare green wars, war with gas, war with fire, those who are in constant war, if they stop for a while, they will be able to feel the pain of others, and they will be able to understand the pain of others. And how you can do this? By doing nothing. Only by doing nothing you can feel the pain of others. Too much activity lead to that too much activity, and that leads to destruction. What I want should not be confused with total inactivity. He says, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसे इनएक्टिविटी मत समझो, क्योंकि इनएक्टिविटी किसका सिंबल है? डेथ का. कि अगर मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको ये मत समझिए कि बिल्कुल इनएक्टिविटी, कुछ करे ही ना, क्योंकि कुछ करना ना करना मृत्यु है. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. जिंदगी तो इसी के बारे में. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हमारा दिमाग एक ही दिशा का में नहीं होता, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग. हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जिंदा रहने का मतलब होता है कुछ ना कुछ करते रहना. हम इतने सिंगल माइंडेड हैं कि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं. एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, मगर कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहिए. परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, सिवाय साइलेंस के, बिकॉज ओनली साइलेंस कैन डिसिपेट डिफरेंसेस. साइलेंस ही डिफरेंसेस को धीरे धीरे और खत्म कर सकता है. एंड ही सेज might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with. अभी कहता है perhaps a use silence might interrupt this sadness of never understanding. क्यों? हम कभी शांति नहीं रहते, और जब शांत नहीं रहते तो खुद को ही नहीं समझ पाते हैं. and of threatening ourselves with death. और हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कुछ नहीं करेंगे तो मृत्यु को प्राप्त होंगे. अरे कर करके ही तो ज्यादा जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं. So here he says that we are so single-minded, we have been taught since our childhood that doing something means you are living, you are breathing, and if you stop doing activities, it means you are dead. But it should not so. It should not be. If we want to understand ourselves, we must know how to keep ourselves quiet. And this is the only thing through which we can introspect, through which we can understand. And if first of all we should understand ourselves, then only we would be able to understand others as well. And he says that now he again moves to the same line. Now I'll count up to 12 and you will quiet and I'll go. कि मैं अब दोबारा से मैं 1 से 12 तक गिनूंगा और तुम जो है सब शांत हो जाओगे, and I'll go, और अब मैं चला जाऊंगा. So he means to say that sometimes it is better not to do anything, keep calm, and he also means to say that before understanding others, one must understand oneself. And how you can do this? By doing nothing. Sometimes you should spend time with yourself, and how can you spend time with yourself? By absolute silence, then only. And that silence should remain for 12 minutes or for a few minutes or for an hour or two, not for the entire life. But we should also master this activity of silence. So the poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, is about peace, fraternity and prosperity. This is the theme, how we can keep peace, fraternity and prosperity by keeping ourselves quiet for a while. This poem during 1950s, a time when the world had suffered a dead war, a Spanish war. The poet too has experienced the repercussions of war. Poet, मैंने भी आपको बताया, उन्होंने स्पेनिश वॉर जो है उसके वो विटनेस रह चुके हैं. कितनी एट्रोसिटीज जो है वो उन्होंने इसमें जो है देखी हैं कि वॉर किस तरीके से लोगों को परेशान जो है भाई उखाड़ फेंकता है. He is fed up seeing human killing each other for power and money. In this poem, the poet asked to keep quiet for a while. Keep quiet means कुछ समय के लिए कुछ मत करो. खुद से साक्षात्कार करना है तो कुछ समय के लिए कुछ मत करो. And stop doing the worldly things and instead think about ourselves. हमें
खुद के बारे में सोचना चाहिए। आर नेचर एंड आर ब्रदर्स हुम वी हेट, जिन लोगों से हम नफरत करते हैं सोचना चाहिए इज इट वर्थ हेटिंग अदर्स, क्या दूसरों से नफरत करना जो है वो सही है। पोएट बिलीव दैट दिस वे वी विल बी एबल टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। हाउ वी कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, नॉट बाय द यूज ऑफ वर्ड्स, by silence. The poem has been divided into 5 stanzas. The line vary from stanza to stanza. 5 stanzas हैं, पांचों के में अलग अलग हुआ। अब इसमें लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। एलिट्रेशन है, वी विल काउंट, WW, सडन स्ट्रेंजनेस, रिपीटिशन है, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, इसमें रिपीट हो रही है। पोएट ने बहुत सारे सिंबल्स इसमें यूज करे, मैंने आपको थ्रू आउट सिंबल्स बताए भी हैं। ब्रदर्स, मैनकाइंड, ग्रीन वॉर्स, डिफॉरेस्टेशन, इसके अलावा मैंने आपको बताया था केमिकल वॉर्स, वॉर्स विद गैस, पॉल्यूशन, क्लीन क्लोथ्स, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, शेड, प्रोटेक्शन। एंटीथीसिस, इट्स अ जक्सटापोजिशन ऑफ दो अलग अलग जो दो अलग कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज को रखा जाता है। काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप क्वेश्चन है, काउंटिंग एंड कीपिंग कंट्रास्टिंग एक्टिविटीज। पर्सोनिफिकेशन, तो इसमें जो है अर्थ कैन टीचर्स और फेस ऑफ अर्थ। मेटाफर, शेड रेफर्स टू प्रोटेक्शन। एंजेममेंट, एक लाइन दूसरी लाइन में जो है जब स्ट्राइड ओवर करती है तो उसे एंजेममेंट कहा जाता है। तो चलिए अब मैं इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को करवाऊंगी, तो चलिए मेरे साथ क्वेश्चंस जो हैं करिए। पहला क्वेश्चन है, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव इज, कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हर चीज, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ये लाइन कहाँ आई थी? ये लाइन रह गई क्या? ये लग रहा है ये लाइन ही कहीं रह गई है। ये लाइन इस पोयम में है, मैं इसको समझा देती हूँ। द पोएटिक डिवाइस यूज, ये लास्ट लाइन है इसकी, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि ये लास्ट लाइन है इस पोयम की, जब हर चीज जो है वो ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। इस लाइन का ना एक आयरॉनिकल मीनिंग है कि साइलेंस जब होता है तो ऐसा लगता है कि हर चीज जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन साइलेंस जब हम रखते हैं, अगर आप खुद भी सोचिए कि जब बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो और उस गुस्से को में कुछ समय के लिए शांत रहा जाए, तो हम ना इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, कई बार ये भी सोचते हैं क्या इस बात का जवाब देना जरूरी है, क्या इस चीज को, तो हम दुगनी एनर्जी के साथ जो है उस चीज को इग्नोर भी कर देते हैं। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम है, मेरे जैसों के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब साइलेंस की वजह से हर चीज ऐसा लगता है कि मर चुकी है, प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन उस साइलेंस के बाद ही जिंदगी जो है वो पैदा होती है। उस मृत्यु जैसे साइलेंस के बाद ही जिंदगी होती, क्यों? क्योंकि वो साइलेंस बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को हटा देता है। तो यह पे जो कहने का मतलब है कुछ, एंड दैट इज मीनिंग जो है उसका, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो यहाँ पर ये पैराडॉक्स नहीं होता, क्योंकि पैराडॉक्स में एक सत्य जो है वो छिपा होता है। और वैसे इसमें यहाँ पर अगर हम कहें व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कहने का मतलब इसमें जो है वो जो बात कही जा रही है, तो इसमें अगर हम लेते हैं द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव इज, तो मैं जो है इसमें पैराडॉक्स ही मानूंगी, क्योंकि इसमें एक विरोधाभासी बातों को कहा गया है और उसमें एक सत्य जो है वो छिपा हुआ है कि जब सब कुछ बिल्कुल शांत दिखता है तो जिंदगी उसमें भी कहीं ना कहीं छिपी हुई होती है। और ये बिल्कुल सत्य है कि शांत सागर में ही जो होता है ना वो लहरें जो है, शांत सागर में ही तूफान जो है वो बन रहा होता है। शांति, जहां एकदम शांति होती है वहां जिंदगी होती है। तो ये जो है मैं इसको पैराडॉक्स कहूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट है, द पोएट इवोक्स अ सिंबल इन ऑर्डर टू इन्वोक दैट देयर कैन बी लाइफ इवन विद स्टिलनेस। द सिंबल इज, पोएट ने इसमें एक सिंबल दिया है,
इन ऑर्डर टू इन्वोक, ये बताने के लिए कि भाई शांति में भी जिंदगी होती है, और वो कहाँ होती है? अर्थ के थ्रू। अर्थ बिल्कुल शांत होती है, फिर भी उसमें जीवन होता है, तो किसके थ्रू कहा गया है? दैट्स अर्थ। What will counting up to 12 help us with? Achieving harmony, achieving goals, fulfilling wishes, winning a race. तो भाई अगर हम 12 तक गिन के शांत हो जाते हैं तो what we will earn? Harmony, brotherhood. तो ये A. A man should be dash with nature. A man should be totally compatible, at war, confused, irresponsible. इंसान को नेचर के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। नेचर को अगर इंसान समझ ले तो वो कंपैटिबल वैसे भी हो जाएगा, तो यहां पर होगा टोटली कंपैटिबल विद नेचर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मैन लुकिंग एट हिज हर्ट हैंड इज अ सॉल्ट गैदरर, डायमंड कटर, रैग पिकर, सर्जन। जो मैन अपने हाथों को देख रहा है, मैंने आपको बताया था, जो उसने बताया था कि एक पेरीफेरी पे रहने वाले एक मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति के बारे में उन्होंने बात की है, तो वो कौन है जिसके हाथों पे जख्म हो जाते हैं? दैट इज सॉल्ट गैदरर। ही सेज कि अगर हम कुछ समय के लिए शांत रहें तो शायद जो वो कमजोर लोग हैं उनको भी थोड़े समय के लिए शांति मिले। फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स मीन्स नॉट कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ वेल्स, नॉट डिस्टर्बिंग बैलेंस इन नेचर, नॉट गोइंग फॉर फिशिंग, नॉट डिस्टर्बिंग द सीन। ये मैंने आपको बताया भी था कि ये चीज़ जो है कॉलोनाइजेशन को बता रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को बता रहा है। तो फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल मीन्स नॉट डिस्टर्बिंग बैलेंस इन नेचर, कि कुछ समय के लिए अगर शांत रहें तो नेचर का बैलेंस भी जो है बन जाए। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट भी इसकी थीम मैंने आपको बताई थी। Now the next question is, when the poet says we will count to 12, he means entire mankind, his own family, his friends, his wife and himself. जब वो कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा, we will, तो we से मतलब है entire mankind, सभी लोगों के लिए जो है वो कहा गया है, that is entire mankind. Now the poet of keeping quiet is P.B. Shelley, विक्रम सेठ, पैब्लो नेरुडा, कमला दास। तो कीपिंग क्वाइट के पोएट हैं पैब्लो नेरुडा, चिलियन पोएट है जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। इन द एंड ही अगेन अपील्स टू द पीपल दैट ही वुड इनिशिएट द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, विल नॉट बॉदर एट ऑल, कंप्लीटली इग्नोर एवरीवन, डिस्ट्रॉय द अर्थ। इन द एंड ही अगेन अपील्स टू द पीपल दैट ही वुड इनिशिएट द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, कि वो जो है ए, इनिशिएट द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड है कि हम लेसन किससे सीख सकते हैं? ट्रीज, नेचर, एनिमल्स, अर्थ। तो इसका आंसर है आप लोगों को पता ही है इसका आंसर क्या है, दैट इज द अर्थ। वॉट अकॉर्डिंग टू द पोएट वुड इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ मैन्स लाइफ, क्या चीज जो है वो इंसान की जिंदगी को इंटरप्ट करेगा? ग्रेट लाफ्टर, ह्यूज साइलेंस, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स। लाफ्टर, आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, क्या नहीं है साइलेंस। तो यह जो इंटरप्ट करेगा हमारी लाइफ को, दैट इज ह्यूज साइलेंस। द मैन इन क्लीन क्लोथ्स वुड बी वॉकिंग विद देयर, ये लाइन का, ये पोएम का ही है कि जब ग्रीन वॉर्स नहीं होंगे, जब वॉर्स विद गैसेस नहीं होंगे, तो लोग एक दूसरे के साथ जो हैं उनको समझेंगे, दे विल बी लाइक ब्रदर्स, और वो क्या करेंगे? वो क्लीन क्लोथ्स पहन के शेड प्रोटेक्शन जो है वो देंगे, तो दैट इज ब्रदर्स। हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, ये रिपीट हो गया है, मैन गैदरिंग सॉल्ट। Sudden strangeness is one of the following poetic devices: simile, personification, alliteration, repetition. SS पहला लेटर जो है रिपीट हो रहा है, तो दैट इज alliteration. He advises the people not to speak, वो लोगों से कहता है कि not to speak French, Spanish, any language, English. वो कह रहे हैं not to speak any language because language creates difference and only silence has one language. Everyone, हर एक का साइलेंस एक सा होता है, तो ही एडवाइजेस द पीपल नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज।
How does the poet perceive lives? As stillness, as silence, as stillness, as silence, a noisy place, a continuous evolution of nature. तो पोएट जो है वो कैसे जो है वो नेचर को देखता है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कि एज स्टिलनेस, साइलेंस, नॉइजी, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन ऑफ नेचर, एवोल्यूशन यानी कि चेंज होता रहता है, तो यहाँ पर आएगा दैट्स डी, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन ऑफ नेचर. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर्स मेंशन्ड इन द पोएम? तो कितने प्रकार के वॉर्स हैं जो पोएम में मेंशन किए गए हैं? वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर अगेंस्ट नेचर, वॉर विद गैसेस एंड फायर, ऑल ऑफ दीज, सारे तरीके के वॉर जो है वो बताए गए हैं इसमें. तो ऑल ऑफ दीज. Which images in the poem show that the poet condemns or hate violence? Fishermen not harming whales, wars leaving behind no survivors to celebrate, poets refusal to deal with death, all of these. तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये देखिए, ये सारे ही हमको देखने को इसमें मिलते हैं. तो that is all of these. What does hurt hand refer to? hurt hand का मतलब क्या हुआ? ये एक इसका सिंबॉलिकल मीनिंग है. ग्रोइंग नीड्स ऑफ द मैन, ग्रोइंग ग्रीड ऑफ मैन, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन. तो अगर हम इसमें ये कहे कि भाई हर्ट हैंड का मतलब क्या है? भाई एक इंसान जो है उसके हाथों में कट्स लग गए, उसके बावजूद भी वो काम करे जा रहा है, सामने वाला उससे काम करवाया जा रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरे कर्मचारी को इतना कष्ट हो रहा है. तो ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन, तो यहाँ पर ये है, ये सिंबॉलिकल मीनिंग है, ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन. What is the poet expecting from fishermen? To find more fish, to go deeper into the sea, to think and stop harming the fish. कि stop fishing, activity ही करना कुछ समय के लिए छोड़ दो. So that is C. Now the question number 21. How long is the poet expecting everyone to stay still? 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, for 1 second till we count 12. तो यहाँ पर है 12 गिनने तक, मिनट्स कहीं नहीं बोला है, 12 गिनने तक है. तो यहाँ पर है दैट इज फॉर 1 second till we count 12. 1 सेकेंड में 12 हो जाएगा वैसे? हाँ जी हो जाएगा वैसे. Why is the moment of silence called exotic? Because of the beautiful scenery around, because of the gathering, because of large gathering, because of perfect peace and harmony. Exotic इसलिए है क्योंकि अगर जब सब शांत हो जाएंगे, एक्टिविटी है, लाइफ है, मगर परफेक्ट हार्मनी है, तो पीस एंड हार्मनी, दैट्स डी. हाउ कैन द मोमेंट्स ऑफ नो एक्टिविटी हेल्प पीपल? दे विल बी हेल्दी, दे विल बी हैप्पी, दे विल वर्क इजीली, टू रिलैक्स एंड बी मोर थॉटफुल. जैसा मैंने अभी आपको इस पोएम को पूरा पढ़ाते हुए बताया कि जब हम शांत रहते हैं तो हम खुद से खुद का परिचय प्राप्त करते हैं, और जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा थॉटफुल होते हैं, हम चीज निर्णय जो है वो जब बहुत अच्छे से ले पाते हैं. तो ये है टू रिलैक्स एंड बी मोर थॉटफुल. व्हाई डज द पोएट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट? टू मेंटेन साइलेंस, टू अवॉइड नॉइज, टू बी फ्रेंडली, इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल. ये सेम क्वेश्चन है. इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल. What does the earth symbolize? Perseverance and new beginning, from seemingly stillness, greenery, prosperity. Earth is the symbol of new beginning. सारे तरफ शांति, तब भी जिंदगी जो है वो पैदा हो रही है. तो perseverance and new beginning. What can be a cure or an antidote to violent action? Speaking, wise words, polished language, practice of silence. शांत रहना, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है और आप पलट के जवाब ना दो, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये काम कर लिया जाए तो शांति वाकई में हो जाएगी. तो ये है व्हाट कैन बी अ क्योर. वायलेंट एक्शंस का क्योर और एंटीडेट क्या है? प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस. दुनिया का सबसे मुश्किल काम है शांत रहना. व्हाई इज साइलेंस ट्रीटेड एज अ बिग इशू? इट हेल्प्स टू सर्च आवर सोल, एनालाइज आवर एक्शन, हेल्प अस टू बी थॉटफुल, ऑल ऑफ दीज. We introspect when we keep silent. When we keep silence, we introspect. We can analyze our action only we are silent. And we can be more thoughtful when we are silent.
सो ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. What does the poem Keeping Quiet teach us? How to maintain silence, not to make noise, speaking creates noise, to be peaceful, thoughtful and have feelings of brotherhood. यही बताती है कि साइलेंस की एक ही भाषा है, तो to be peaceful, thoughtful and have feelings of brotherhood. What is destroying the environment? Unthoughtful actions, violent actions, speaking without thinking. एनवायरमेंट को क्या क्या चीजें जो है वो पल्यूट कर रही हैं? बिना सोचे समझे काम करना, वायलेंट एक्शन करना, बिना सोचे समझे बोलना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को परेशान कर रही हैं. फिर भी रुकते नहीं है, रुकने के नहीं है. तुमको हमको एक पत्थर मारोगे, हम तुम्हारे को पूरा दीवार मत चिनवा देंगे. साइलेंट नहीं रहने का नहीं मतलब नहीं है ना. तो जब साइलेंट नहीं होते हैं, वायलेंट होते हैं, तो दैट इज ऑल. उसके बाद हमारा आगे का जो पॉइंट है, 29 क्वेश्चंस हो गए हैं. There's so many questions. How is keeping quiet related to life and can change attitude? It helps to think and search soul, help to scratch one's soul, helps to develop new thinking process. All of these है. इसका भी आंसर जो है वो क्या है? All of these. Why does the poet ask people not to speak? Because it creates barriers, or because it creates noise, because he doesn't like noise. It makes things unpleasant because it creates barriers or obstacles in the form of. भाई लोगों को बोलने से क्यों मना करता है? क्योंकि जितनी भाषाएं उतने मिसअंडरस्टैंडिंग्स और उतनी जो है एक आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, बातों पे बातें और बातें ही बातें. एक सामने वाला, वो कहते हैं ना, कभी कभी आप लोगों एक चुप 100 को हराए. और जैसे आजकल के ज़माने में चुप रहना कितना बेनिफिशियल है ये आप लोग भी जानते ही होंगे. मगर फिर भी ये पोएम बहुत अच्छी है, एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग जो है पोएम है. इट क्रिएट्स बैरियर्स. ही आस्क्स पीपल नॉट टू स्पीक. व्हाई? बिकॉज इट क्रिएट बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. सो इफ पीपल कीप मम फॉर अ व्हाइल, तो बहुत कुछ सुधर सकता है जी. अब इससे समझ में आएगा, इफ स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन. What does the poet feel is needed to be at peace? Meeting with people, talking with people, interaction with the people, soul searching. Be silent and search your soul. What is the original language of the poem? Original language poem की क्या थी? That was Spanish. Spanish में लिखी गई थी. Original जो ये poem है ये Spanish में लिखी गई थी. What was poet's pen name? Poet's pen name was Pablo Neruda. And the last question of today is, what does the poem speak about? The necessity to be happy, the necessity to introspect, understand and have feelings of brotherhood, the necessity to work quietly. That is, शांत रहो, खुद को एनालाइज करो, समझो, तभी तुम दूसरों को भी समझ पाओगे. इसीलिए बी. तो भैया ये पोएम आज की बहुत थॉट प्रोवोकिंग पोएम है. समझदार लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी. तो शांत रहिए. कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत जो है जरूरी होता है. शांत रह के सोचिए हमें चाहिए क्या, हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है. तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है. मिलते हैं कल. बाय बाय.